ارد گنگ بھی میری خطہ چمن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا نعت مصطفیٰ کہنا نعت مصطفیٰ سننا نعت مصطفیٰ کہنا نعت مصطفیٰ سننا مجھ کو بخشوائے گا یہی چلن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے حشر میں پکارا جائے گا حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے مجھ کو دیکھیں اور کہہ دیں یا شہ زمن میرا مجھ کو دیکھیں یا کہہ دیں یا شہ زمن میرا میں غلام خواجہ ہوں لیکن بات سچی ہے تو ساتھ ساتھ پڑھیے میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا چلن چلی والوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں جو اپنے ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ اگر غلام خواجہ ہیں تو اقرار کریں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا عرش جھوم جھوم اٹھا قدسیوں کو وجد آیا نعت مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور اللہ نظمی میں ہمارے نبی کیا لکھتے ہیں گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے
گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے، ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت و خواب گراں بدل ڈالو، اور سفینہ اپنا بھی کنارے سے ٹکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ اقبال نے پکار کر کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ہمارا نہ سنبھلنا آپ اپنے ماتھوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جس وطن کی آزادی میں 100 میں سے 90 مسلمان قربان کیے گئے، آج انہی مسلمانوں کو اتہاس کے پنوں سے باہر کر دیا گیا، اسکولوں سے سلیبس میں سے ہماری تاریخیں نکالی جا رہی ہیں، اور زبردستی آزادی کا صحرا لوگ اپنے سروں پر تھوکتے پھر رہے ہیں، لیکن سچائی تو ہمیشہ سر چڑھ کے بولتی ہے۔ آپ کب تک چھپاؤ گے؟ الغرض یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، ان پیغامات کے حساب سے جناب حضرت مولانا سید کفایت اللہ کافی جو بجنور میں پیدا ہوئے، لیکن تعلیمی معیار ان کا بلند ہوا مراد آباد کی سرزمین پر، اس لیے کفایت اللہ کافی مراد آبادی علیہ الرحمہ کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ جب انگریزوں نے انہیں پھانسی پر لٹکایا اور کہا آخری کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو، ایسے عالم میں سید مولانا سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں سے کہا کہ سنو، ہماری یہ جو خواہش ہے آخری جو تم نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آقا سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نعت رسول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انگریزوں نے جب اجازت دے دی تو جناب مولانا سید کفایت اللہ کافی نے پڑھا تھا اور فرمایا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ انگریزوں تم اپنے ظلم سے ہمیں مٹا سکتے ہو، ہمارے جسم کو مٹا سکتے ہو، لیکن جو رسول اللہ کا دین ہے وہ انمٹ ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرات، ہمارے بھائی عزیز اکرامی بھائی راجو صاحب نے 500 روپے پیش کیے ہیں، 200 روپے مجھے بطور نذرانہ اور 300 روپے انہوں نے صدقہ مدرسے کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک ان کا دیا قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی صدام حسین صاحب نے بھی 100 روپے مسجد کے لیے اور 100 روپے مدرسے کے لیے پیش کیا، مجھے بھی بطور نذرانہ کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور علم و عمل میں رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔
अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्त शुनी से पेश कर चंद बातें आपकी गोशतगुजार कर दूँ। ये इदारा मदरसा गौसिया मुस्तफ़ा रज़ा, जिसकी बुनियाद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसलक आला हज़रत पर रखी गई है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के पैगामात को नशर करना और इश्क़ रसूल को आम करना, ये हमारा मिशन है और इसी मिशन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशों से काम कर रहे हैं और जब तक जा बाकी है इंशाअल्लाह इसी मिशन पर काम होता रहेगा। और इश्क़ रसूल हमारा ये वो मिशन है कि हम चाहते हैं कि कौम का हर बच्चा कुछ बने न बने रसूलुल्लाह का आशिक बन जाए, क्योंकि इश्क इंसान को बेनियाज कर देती है, इश्क इंसान को बुलंद कर देती है। इश्क रसूल खासकर ये वो चीज है जिसको इंसान पाले तो दुनिया के हर गम से छुटकारा पा जाता है। इश्क रसूल हमें पैरवी भी सिखाएगी, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माँ बाप का अदब भी बताएगी, नमाज के सलीके भी सिखाएगी, कुरान पाक की तिलावत की तरफ हमें राग़िब भी करेगी। हमारे सीनों में जो धड़कता हुआ छोटा सा दिल है, उस दिल के नेहा खानों में अगर किसी का अक्स और किसी की तस्वीर छपेगी तो रुखे मुस्तफ़ा की होगी या जलवे गुंबदे खजरा की होगी। मेरे अजीजों, इन मिशन पर काम करने के लिए मदरसा गौसिया मुस्तफ़ा रज़ा का क़याम अमल में आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जब से इस मदरसे का आगाज़ किया है, सैकड़ों बच्चों को हाफिज़ कुरान और कुरान मुक़द्दस की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया। कई वो बच्चे जो हाफिज तो न बन सके, कारी तो न बन सके, लेकिन उन्होंने इतना पढ़ लिया है कि कभी बाबा का इंतकाल हो जाए तो फातिहा के लिए कभी किसी मौलवी के दर पे नहीं भटकना पड़ेगा, खुद अपने बाप के लिए वो दुआए मग़फ़िरत कर सकता है। तो हज़रात, इस नेक काम को, इस मिशन को जारी रखने के लिए हमने आपसे बारहा गुजारिश करी है। अब ये आखिरी बात और भी आपसे कह लेना चाहता हूँ कि इस मिशन को कामयाब करने के लिए हर महीना, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, हर महीना, हर हफ्ता आप जैसे चाहें बतौर सदक़े जारिया, इस बहाने आपकी कमाई का सदका भी अदा हो जाएगा और इदारे के लिए एक मजबूत सपोर्ट मिल जाएगी। चूँकि हमारे पास आमदनी का और कोई जरिया नहीं कि इदारे के पास कई दुकानें होंगी तो वहाँ से किराया आ रहा होगा, या मकान होंगे तो वहाँ से किराए आ रहे होंगे, फिर उससे काम चलेगा। और न कोई मुहस्सिल है जो गली गली में या मस्जिदों जाकर चंदा करके लाए। बस आपके आगे कह लेता हूँ और अकेला फ़कीर क़ादरी तने तनहा आपके आगे जाता है या आपके आगे बात रख देता हूँ। आप जो सपोर्ट करते हैं उससे मदरसा चलता है। और जो 15 तलबा हमारे यहाँ शबो रोज़ ज़ेर तालीम है, उनके खाने पीने का नज़्म नस्क होता है, इब्तिदाई इलाज व मुआलजे की भी का इंतज़ाम रहता है। ये तमाम चीज़ें आपके दिए से पूरा होता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप हर महीने अपने ज़िम्मे करम पर बांध लें कि मैंने 100 रुपए मदरसा गौसिया मुस्तफ़ा रज़ा को देना है, ताकि जो बच्चे अल्लाह रसूल का दीन सीख रहे हैं उन बच्चों को दीन सीखने सिखाने में आसानी हो सके। आलिम दीन जो हमारी खिदमत पर मामूर हैं उनके घर का भी चूल्हा जल सके। लेकिन अफसोस, कई लोग ऐसे हैं जिनके इल्म में सारी बातें होने के बावजूद दुनियादारी के लिए रोजाना 500, 700, 1000, 1500 रुपए का उनके घर का खर्च है, लेकिन महीने में 100 रुपए, 200, 150, 500 रुपए मदरसे के लिए नहीं दे पाते। और बाद में जब कहीं खसारा होता है या डॉक्टरों के यहाँ जाकर लाखों रुपए खर्च करने होते हैं, तब शिकायत होती है, हजरत हमारे लिए दुआ करिएगा, फलाने मामलात में हम फंस गए। मेरे अजीजों, नबी अकरम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, अपने मरीजों का इलाज सदका देकर किया करो। हम सबसे पहले डॉक्टर को पैसा भर जाते हैं और सदका बाद में करते हैं, जबकि दीन कहता है, शरीयत कहती है, पहले सदका अदा करो फिर डॉक्टर के पास जाओ। वही डॉक्टर जिसकी लाखों रुपया की दवा खाने के बाद तुम्हें शिफा ना मिली, तुम सदका करके जाओगे, वो 10 रुपए की दवा देगा, अल्लाह उसी में शिफा पैदा। तो पहले सदका जरूरी है।
कारोबार में खसारा नहीं होगा अगर आपने सदका निकाल दिया, माल में चोरी नहीं हो सकती अगर आपने सदका निकाल दिया, आपने अपने घर की बनावट में जो पैसे लगाए हैं उसका सदका अदा कर दिया, घर में कभी आग नहीं लग सकती है, कभी अजीब मुआमला नहीं हो सकता है। ये सब सदक़े की फजीलतें हैं। इसलिए आप सदका अपने जिम्मे पर बांध ले, मन में नियत कर ले। यार मुफ्ती साहब ने कहा है तो जरा गौर करें, बड़े दिन हो गए इनको कहते हुए, अब तो हमें हमारे ज़मीर को हया आ जानी चाहिए कि चलो इस काम में मुंसलिक होते हैं और काम को और बड़ा किया जाए। बच्चे दीन सीख रहे हैं, जरूरी है कि वो दुनिया की तालीम से भी माला माल हो, यहीं पर इसी इदारे में माला माल हो जाए। तो दोस्तों जरूरी है कि हम अपने रब की इबादत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें और उनकी मोहब्बत को सीने में जगह दे, ताकि हम कह सके हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हज़रात गिरामी वक़ार, ये तो वो बात थी जो मदरसे के लिए आपके सबूत और ताउन और मदद की जरूरत है। दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये बता चुका हूँ, इदारा अब भी ज़ेरे तामीर है और तामीराती काम सिलसिलेवार। माशाअल्लाह हमारे इन भाई ने 100 रुपए मदरसे के लिए सदका पेश कर दिया। अल्लाह इनकी मुश्किलें आसान फरमाए और बलाओं को दूर फरमा दे, मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो भी हजरात अपनी अपनी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे भाई जाहिद खान साहब, इन्होंने भी अपनी तरफ से 100 रुपए इन्होंने अपनी तरफ से पेश किया। अल्लाह कबूल फरमाए। और भी जो भाई इस नेक काम में सदका जारिया की नीयत करके पेश करें और इंशाअल्लाह जब तक कि ये चलता रहेगा इसका सवाब आपके नामे आमाल में आता रहेगा। दूसरी बात ये कि मैं कई जुमे से बाद रमजान से लगातार आपके आगे मैंने बात डाली। माशाअल्लाह हमारे बाबू अजीजम अनस रजा, इन्होंने भी 100 रुपए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए और इनके सदक़े को भाई एहतिशाम साहब 100 रुपए, और आप ये 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जितनी भी नियत करें आप, हम ये नहीं कहते आप हर जुमे में दे दें, आप चाहें तो महीने में एक बार अदा कर दें, आ न सके हमें कॉल कर दें, इंशाअल्लाह हम आएंगे या हमारे कोई इंतजामिया में से आ जाएंगे, आप तक पहुंचकर उस सदक़े को वसूल करेंगे। इसी बहाने आपसे भलाएं भी टलेंगी, मुसीबतें दूर होंगी और इदारे का काम हो जाएगा। तलवाए किराम जब उसे इस्तेमाल करेंगे, कुरान की तिलावत होगी, दुआएं निकलेगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। मेरे अजीजों, अब दूसरी बात जो तामीराती काम के लिए मैंने बताया, 107 मेंबर अब तक हमारे पास जमा हो चुके हैं। हमने बताया था 462 रुपए के हिसाब से 250 लोगों की जरूरत है, 107 लोग जुड़े। उसके बाद कल एक फोन आया, उन्होंने अपनी तरफ से 3 लोगों के नाम इंदराज कराए, लेकिन रकम अब भी बाकी है। और एक भाई हमारे नमाजियों में से है, उन्होंने भी कहा कि 3 लोगों की हमारे नाम पे लिख दें। माशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो लिखे हुए के हिसाब से अगर देखा जाए तो माशाअल्लाह तकरीबन 113 लोग हो गए हैं, लेकिन अदायगी सिर्फ 107 लोगों की। माशाअल्लाह इन्होंने भी 100 रुपए सदके पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं तो ये कहता हूँ माशाअल्लाह, ये 500 रुपए हमारे भाई, माशाअल्लाह ये 100 रुपए और ये 50 रुपए, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। हमें भी नजराना मिल गया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकत। माशाअल्लाह इन भाई ने भी 100 रुपए मदरसे के लिए सदका पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे भाई राजू साहब, इन्होंने 500 रुपए वो मिंबरी वाले में पेश कर दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अपने बच्चों, अपने घर के हर फर्द की तरफ से एक सदका निकाल दीजिए, इंशाअल्लाह उस मिंबरी में आपका नाम अल्लाह ताला शामिल फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। माशाअल्लाह इन्होंने भी 50 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, तो 113 नाम मैंने आपको बताया, 6 नाम वो हैं जिनकी रकम अदा नहीं हुई है, एक नाम और बढ़ गया। हमारे भाई राजू साहब, इन्होंने ये 500 रुपए पेश कर दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो 114 नाम हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूँ कि आज के जुमे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के उर्स की जो तारीख है वो 25 तारीख है, चाँद की 25 तारीख है। तो अब चूंकि 114 लोगों के नाम हमने आपको बता दिए, अब 11वीं की भी निस्बत हो जाए
और 11 नाम जुड़ेंगे तो 125 लोग हो जाएंगे, आला हजरत की भी निस्बत पूरी हो जाएगी। तो पूरी मस्जिद में ऊपर 5 मंजिला तक के जितने लोग बैठे हैं और यहाँ नीचे ग्राउंड में जितने लोग हैं, सब लोग एक एक हिस्सा, अगर 11 आदमी एक आदमी अपने अपने माँ बाबा अपने नाम से अपने रिश्तेदारों आइज़ा अकरब औलाद की तरफ से एक सदका 462 रुपए के हिसाब से निकाल दें, 125 आला हजरत की निस्बत भी पूरी हो जाएगी। 11 लोग जुड़ेंगे, सरकार गौसे पाक का फैजान भी जारी होगा। एक नाम इनका सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 उनकी तरफ से सुभान अल्लाह, ये 3 नाम हो गए माशाअल्लाह। एक उधर से 4 हो गए और एक सद्दाम भाई 5 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और भी तेजी के साथ बढ़िए सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और इन हजरात सभी हजरात के पास घूम कर आप इनके नाम और नंबर लिख लीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। 5 लोग, 2 इससे उन भाई के, एक सद्दाम भाई के 3 और एक इन साहब के 4 और एक वो साहब बैठे हैं अब्बा के पास, वो 5 लोग हैं टोटल माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए और मौला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। तो ये निस्बतें ऊपर के मंजिल में जो लोग मौजूद हैं, आप ऊपर हमारे जिम्मेदार जो हैं शकील भाई हैं या दीगर जो हजरात बैठे हैं, आप पूछ लें अगर कोई इसमें हिस्सा लेकर और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की निस्बत से मामले को पूरा करे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक नाम और बढ़ गया 500 रुपया सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 6 लोग हो गए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ ऊपर भी पूछ लें, मालूम कर लें और उसके बाद जितने लोगों से ज्यादा हो सके 125 नामों की जरूरत है, अल्लाह कबूल फरमाए। 6 लोग हो गए तो तकरीबन 120 नाम हो जाते हैं, 5 नामों की और जरूरत है सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए और मौला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए माशाअल्लाह। सभी हजरात सुभान अल्लाह, हमारे भाई सद्दाम हुसैन साहब इन्होंने 500 रुपए ये अदा कर दिए, अभी के अभी इन्होंने हाथ के हाथ नकद अदा फरमा दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे जमील भाई इन्होंने भी पेश कर दिए 100 रुपए मदरसे के लिए इन्होंने सदका पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। और एक भाई और स्कैन करके ले गए थे, उन्होंने कितने डाले मालूम, अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तो ये तकरीबन सुभान अल्लाह इन्होंने भी 50 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। 6 नाम हुए हैं अभी तक, 5 नामों की और जरूरत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा वाले हैं हम लोग, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। 18, 19 और 20 तारीख को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का उर्स पाक मुनक़िद हो रहा है और 20 अगस्त को 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र है, यानी चाँद की 25वीं तारीख है। तो इस निस्बत से 5 नाम और, मैं ये नहीं कहता कि आप अकेले सब लोग अपनी अपनी तरफ से पेश करें, अगर कोई अकेले 5 नाम पेश करना चाहे तो वो अपने घर वालों और सभी मेंबरों की तरफ से पेश कर सकते हैं माशाअल्लाह। हमारे शेखू भाई इन्होंने भी 50 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद हाशिम साहब उर्फ विक्की भाई इन्होंने 500 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। उनकी नन्ही शहजादी है, उनके भाई की भतीजी है, इनकी दुआ करिए अल्लाह ताला उस बच्ची को जो हिलाक कर देने वाला मर्ज लग गया है, कैंसर के असरात बताए गए हैं, दुआ करिए अल्लाह ताला उस बच्ची को शिफा अता फरमाए और मौला इस हिलाक कर देने वाली बीमारी से हर मोमिन की हिफाजत फरमाए। तो ऊपर की मंजिल में मालूम कर लें, जो लोग भी इस 462 रुपए वाले मेंबर में शामिल होना चाहें, एक निस्बत सब लोग जोड़ लें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 रुपए ऊपर से किसी भाई ने भेजा है, अल्लाह कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। मेरे अजीजों, अब आखिरी बात जो मैं कहने लगा हूँ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जो कि इल्म का मरकज़ है, इल्म का परतो है, इल्म मुस्तफ़ा की चमक धमक और उनकी तमाम तर रहनुमाइयाँ अगर किसी में हिंदुस्तान में पाई जाती है तो वो ज़ात आला हज़रत की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, जो इल्म मैंने अपने बाप से नहीं सीखा वो मेरे मदीने के मुस्तफ़ा ने हमें सिखाया सुभान अल्लाह। और जब मुअल्लिम और उस्ताद मदीने के मुस्तफ़ा हो और पढ़ने वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आशिक़ रसूल हो
तो फिर इल्म को भी फख्र होता है पढ़ने वाले पर और पढ़ाने वाले पर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौजूदा तहकीक के हिसाब से माशाअल्लाह हमारे भाई राजू साहब के साहबजादे शाहिद व विनोद 100 रुपये भी लेके आए, अल्लाह कबूल फरमाए और मौला बरकत अता फरमाए। तो हज़रात आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आप वो आलिम दीन हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया और खुदा दाद सलाहियत है आपके पास, मादर जाद वली हैं। मैं एक वाक़या बहुत मुख्तसर में बता के अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ और जब तक मैं इस गुफ्तगू को समेटूं 5 लोगों को मैंने आवाज और दिए, 11 लोग मैंने मांगे थे, 6 लोग बढ़ करके 6 हिस्से आ गए हमारे पास और 462 वाले में 5 हिस्सों की और जरूरत है। आप गुफ्तगू को सुनिए और अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए, बेदार कीजिए। माशाल्लाह हमारे एक शादाब भाई ने 200 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने माशाल्लाह, एक नाम और बढ़ गया, ये 7 नाम आ गए, सुभान अल्लाह। अब 4 नाम अकरम भाई, शहबाज भाई, चारों भाइयों के नाम माशाल्लाह हमारे भाई जूस वाले ये बिरादरान है, शहबाज भाई, शहजाद भाई, अकरम भाई और एक नाम मुझे नहीं मालूम, वो ये चारों भाइयों ने अपनी अपनी तरफ से 4 हिस्से कर दिए, तो 7 और 4 11 हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, 107वां उर्स रज़वी। हजरत तो सरकार आला हजरत हज के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जोर से बोलिए, हज के लिए जा रहे हैं। और उस जमाने में जो हज के लिए सवारी जाती थी वो बादबानी कश्तियां थी, अंजन वाली नहीं थी, वो पर्दे होते थे, पर्दे हवा के रुख पर चप्पू चलते थे, फिर उससे मंजिलें तय होती थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने हुजरे में बैठे और जैसे जहाज बीच समंदर में पहुंचा है, जहाज डूबने लगा और तूफान के थपेड़ों में रुख बदल दिया जहाज का, बागबान फट गए। अब ऐसे आलम में जो कश्तीबान थे, जहाजरान थे, मल्लाह ना खुदा थे, उन्होंने काला झंडा बुलंद कर दिया, ऐलान कर दिया, वो हाजियो, वो मदीने को जाने वालों, अपनी जिंदगी को आखिरी सलाम कह लो, अब हम बच नहीं पाएंगे, मदीने पहुंच नहीं पाएंगे, हिजाज़े मुक़द्दस अब हम देख नहीं सकते, हमारा जहाज डूबने वाला है। जब ये ऐलान उन्होंने किया तो पूरे कश्ती में शोरो होगा फैल गया, सब लोग आहो बका करने लगे, रोने लगे, सीना कूबी करने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की वालिदा माजिदा आपके साथ थी, प्यार से आला हजरत को आप अमन मियां बुलाया करती थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपना नाम अब्दुल मुस्तफा रखा हुआ है और दादा हुजूर ने आपका नाम अहमद रजा रखा है। मेरे अजीजों, सरकार आला हजरत के पास आई और कहने लगी, बेटे अमन मियां, कश्ती के मल्लाहों ने काला झंडा दिखा दिया है और कहते हैं कि कश्ती डूब जाएगी, हम मदीने तैयबा पहुंच नहीं पाएंगे, कहते हैं अपनी जिंदगी को आखिरी सलाम कह लो। बेटे ये मामला है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वालिदा आप इत्मीनान रखें, आपके बेटे अहमद रजा ने मुस्तफा करीम के कौल पर अमल करते हुए कश्ती में पांव डाला था। मेरे नबी ने फरमाया है कि जो कोई मोमिन कश्ती में पांव रखने से पहले पढ़ ले बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, उसकी कश्ती सूरज अपना रास्ता बदल सकता है और सितारे अपने जगमगाहट छोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा करीम का वादा झूठा नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया ये दुआ पढ़ लो, कश्ती डूबेगी नहीं। अहमद रजा ने कश्ती में सवार होने से पहले दुआ पढ़ लिया था, इसलिए मेरा ईमानो ईकान कहता है कश्ती वाले झूठे हो सकते हैं, मुस्तफा का वादा झूठा नहीं। सब डूब जाए लेकिन हमारा जहाज नहीं डूबेगा। वालिदा को मुतमईन करके भेज दिया, मगर इधर दिल मदीने तैयबा की तरफ लौ लगाए और फरमाने लगे, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको,
बाराती पुरखार वादिए हैं, और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती, तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए, लंगर उठा दिए हैं। आला हज़रत सरकार ने ये शेर उसी 20 समंदर में लिखा और पढ़ा, और जैसे पढ़ा मदीने में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। कश्ती पार हो गई भंवर से और तूफान से बाहर निकल गई, सलामती से सब मदीने पहुंचे। ना खुदा हैरान है ये हुआ कैसे। तो तब पता चला, जब इस वाक़े को पढ़िए तो पता ये चलता है कि आला हजरत सिर्फ बरेली में पैदा होने वाले एक पठान के बेटे नहीं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। सरकार के सच्चे गुलाम का नाम अहमद रज़ा है, सरकार के इल्म का नाम अहमद रज़ा है, सरकार के नूर के जलवों का नाम अहमद रज़ा है, सरकार के काली जुल्फों के से निकलने वाली खुशबुओं का नाम अहमद रज़ा है, सरकार अलैहिस्सलाम के सफरे मेराज के असरात का नाम अहमद रज़ा है। यकीनन सरकार आला हज़रत की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है। उसी ज़ात का उर्स इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को बरेली शरीफ में मुनाकिद होगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम यहाँ से मना कर जाएंगे।